Welcome you all to my YouTube channel, my dear students. After 2-3 days, when I have got the time, I am preparing a video for my class 10th ICSE board students. This video is for class 10th students who will write the exam of mathematics in 2022. I am going to provide you the solution of specimen paper what the council has sent to you all. Let us see how to get the answer. I hope you all know the exam we are going to have in the month of November. The questions will be MCQ based. I mean, options will be provided to you. Out of 4 options, you have to tick on the appropriate answer. I hope you know the exam will be online based. I mean, the mode of examination will be online. So, you need to know how to answer the questions in less time. There will be 3 sections, my dear students. There will be 3 sections. All three sections are compulsory sections. Means there will be no optional question. Remember, there will be no optional questions. All questions are compulsory. Whether they are in section A, section B or section C, it doesn't matter. Section A will be having 16 questions. Each one will carry 1 mark, while section B will carry 6 questions. Each question will carry 2 marks, and section C will carry 3 questions. Each question will be of 4 marks. Each question will be of 4 marks. So, section A, section B and section C. Section A will have 12 questions. 12 questions of 12 marks, while section B will carry 6 questions of 12 marks. I mean, each question will be of 2 marks. Section C, there will be 3 questions of, here in section A there will be 16 questions of 16 marks, means each one will carry 1 mark. Section B, 6 questions, each question will carry 2 marks, so 12 marks. 3 questions in section C of 12 marks.
So I hope you have understood that there will be 3 sections. In section A, 16 marks questions. There will be 16 questions. Section B, 12 marks questions, but only 6 questions. Section C, 12 marks questions, but 3 questions only. You add, you will get the question paper of 40 marks. Each section is compulsory, means you have to answer every question of the question paper to get 40 out of 40 in semester 1 exam. So let's do the questions of the specimen paper. I will provide you the link. Using that link you can download the question paper. So watch the video till the end to get the answer of every question of the specimen question paper. So I start answering question number 1 of section A. Question number 1. The question says a matrix A is of order 3 cross 2 and matrix B is of order 2 cross 2. Then the order of matrix AB is I hope you know AB is possible only when the number of columns in A is same as number of rows in B, and the resulting matrix AB has its order such that the number of rows is equal to the number of rows of A and number of columns of AB is equal to the number of columns of B. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर AB पॉसिबल है तो AB का ऑर्डर, AB के ऑर्डर में कॉलम्स की संख्या रो की संख्या A के रो की संख्या के बराबर होगी और कॉलम्स की संख्या B के कॉलम की संख्या के बराबर होगी. आई मीन it will be 3 cross 2. I hope you have got the idea. So here the answer is A, option A. Question number 2. Let me make it clear again. If A and B are matrices such that A has its order x cross y, B has its order p cross q, then multiplication is possible if y equals to p. A B तभी संभव है जब y p के बराबर हो जाए, मतलब इस A मैट्रिक्स का कॉलम B मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए, और तब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा x क्रॉस q. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने बताया कि AB का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. द परसेंटेज शेयर ऑफ SGST. Percentage share of SGST
of total GST. For an intra-state sale of an article. SGST is half of GST. SGST is half of GST. I hope you know SGST and CGST. These two GST together equal to GST. So percentage share of SGST out of total GST is 50%. So which option is correct? First one. Question number 3. ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD. अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक्स जैसा शेप आ रहा है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक्स जैसा शेप आ रहा है, तो जो दो ट्रायंगल्स मिलेंगे वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा है then the triangle similar to AOB, AOB के सिमिलर ट्रायंगल। अब आप सोचेंगे कि ये भी तो एक्स जैसा आ रहा है, तो आमने सामने ये ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। नहीं, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एक्स जैसा शेप बनेगा, तो जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सो इसमें पूछा है कि ट्रायंगल AOB के सिमिलर कौन सा ट्रायंगल है, तो AOB के सिमिलर आप बोलोगे COD, ऑप्शन नंबर सी। सिमिलैरिटी क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो दो ट्रायंगल्स के अगर तीनों एंगल्स या कम से कम दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर हैं, दोनों ट्रायंगल्स के आपस में दो दो 1 1 करके दो दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। और आपको बताते चलूं कि ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब इक्वल रेशियोज में होंगे। याद रखिएगा, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, यानी उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। So here option C is the correct option. Question number 4. The mean proportional between 9 and 16. 9 और 16 दो नंबर्स के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालने का एक शॉर्टकट फार्मूला है। इफ A and B are two numbers, अगर A और B दो नंबर्स हैं और उनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल बताना है तो वो होगा स्क्वायर रूट AB। तो दोनों को गुणा कर दीजिए, 69 या 144, आंसर आया 12। तो कौन सा ऑप्शन 12 है? डी। क्वेश्चन नंबर 5 ना।
A man deposited 500 rupees per month for 6 months. Rupees 500 man deposits for 6 months. ध्यान से सुनिएगा, 6 महीने हर एक महीने 6 महीने तक उसने 500 रुपए जमा किए और मैच्योर होने के बाद उसको वापस 3,300 रुपीज मिले। तो पूछा है इंटरेस्ट कितना मिला। तो यहां इंटरेस्ट निकालने के लिए किसी बहुत बड़े फार्मूला की जरूरत नहीं है। आप ये पता कर लो कि 500 रुपये प्रति मंथ अगर वो जमा करता है पर मंथ, तो 6 महीने में कितना जमा करेगा। 500 इंटू 6 3000। तो उसने 3000 जमा किया और उसको मैच्योरिटी वैल्यू मिली 3300। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो उसको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। 300। तो 300 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन 5 का आंसर होगा बी। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पूछा है तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस सम डिपॉजिटेड। तो 6 महीने में कितना जमा कर लेगा वो 500 रुपए के हिसाब से। 500 इंटू 6 3000। विथ इंटरेस्ट उसको कितना मिला 3300। तो इंटरेस्ट कितना हुआ 3300 माइनस 3000, जस्ट 300 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। We have a real number line. On this real number line we have a graph. At this end of this graph we have a circle darkened with black color. At this end we have a circle which is not filled with black color. The numbers are marked on the number line here. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, -4, -5, and this graph is colored. So look at this end. The circle is filled with black color. Here circle is not filled, and between these two integers -3 to +2 the whole portion of the line is colored. I mean, here if you want to write the range for x, you will have to consider x as the real number. First thing, x is real number. Second, at this end, this indicates that real number will be equal to -3 also, and this indicates that real number x cannot have its value 2. So between -3 to +2 x will have its range. So you will write x is greater than or equal to -3 but less than 2, and x belongs to R. Do we have any option like this? X such that x belongs to R, -3, less than or equal to x, less than 2. I think option A is the correct answer. Option A. X such that x belongs to R, -3 is less than or equal to x,
is less than 2. Question number 7. The first three terms of an AP are 1, 9, 17. Then the next two terms, I hope you know, in AP the difference between consecutive terms remains same. So let us find the common difference. 9 minus 1, 8. 17 minus 9, 8. So 8 is the common difference. So next term to this will be 17 plus 8, 25. And after 25, one more term we want. So 25 plus 8, 33. So next two terms after 17 to this AP arithmetic progression will be 25 and 33. So which option has 25 and 33? Option C. Question number 8. Question 8 now. Triangle ABC is similar to triangle QRP. One trick I would like to tell you here, my dear students. If you have in the question, if you have two triangles which are mentioned similar, as you can see here, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर मेंशन किया है, तो आप तुरंत कंक्लूजन निकालोगे कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इक्वल्स टू एंगल R, एंगल C इक्वल्स टू एंगल P. मैं पहले ही एक क्वेश्चन में बताया था कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब उनका रेशियोज बराबर होगा. तो आपको मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरूरत नहीं है, बट टू सेव द टाइम you can say A equals to Q, B equals to R, C equals to P, and AB first two letters QR, then AB upon QR equals to BC upon RP equals to AC upon QP. कब बोल सकते हो? जो मैंने कहा ये सभी बातें आप तब बोल सकते हो जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. तो ऑप्शन में क्या बोला है? देन द करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स आर. आप अपने से ही लिख लीजिए. प्रोपोर्शनल साइड्स क्या होगा? ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी, ए सी अपॉन ए सी फर्स्ट लास्ट अपॉन क्यू पी. अब आप इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है. ए बी बाई क्यू आर, पहला देखिए ए बी बाई क्यू आर, बी सी बाई पी आर. फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया. ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ये मिल गया प्रोपोर्शन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. X belongs to W. I hope you know W is the set of whole numbers starting with 0, 0, 1, 2, 3, 4, dash, dash, dash. Counting number which starts with 0. A set of counting number which starts with 0 is called whole number. So we have an inequation. Minus x is greater than minus 7. So when you want to simplify, most of you make mistake and cancel out x. Remember, when you cancel out these negative terms, negative sign, this symbol changes. I mean, this symbol will change to less than.
when you multiply the inequation by -1 to get the value of x, this one will become positive, this one will become positive, but this will change. So we will get the range x less than 7. So and a whole number less than 7 are, whole numbers less than 7 are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do we have such set? We have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Option B. So option B is the correct option. Now question number 10. What do we have in this question? We have a quadratic equation 4x square minus 7x plus 2. तो quadratic equation से कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में. We have a quadratic equation 4x square minus 7x plus 2. Its roots are 1.390, 1.390 and 0.359. ये दोनों उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं. क्या बोला है? द रूट्स करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये आंसर दिया है. इस आंसर को राउंड ऑफ करके एक दूसरा आंसर लाना है. कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर. तो आंसर में केवल 2 ही फिगर्स होने चाहिए. अंडरलाइन कर देता हूं. ये दोनों डिजिट्स होने चाहिए. आंसर में ये दोनों डिजिट्स होने चाहिए, 2 प्लेसेस होने चाहिए. तो आप 9 को हटाओगे, तो जब 9 को हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 1.6. क्योंकि आपको पता है कि 5 या 5 से ज़्यादा वैल्यू को हटाते हैं तो ये बढ़ जाता है. उधर आइए, जब इसको आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0.36. तो कोई ऑप्शन है जिसमें आंसर 1.6 और 0.36 है? सॉरी, ये 1.39. सो 9 हटेगा तो ये 4 हो जाएगा. Do we have any option? 1.4 and 0.36? Yes, option C. So option C is the correct option. Question 11. In question 11 we have 4 terms in proportion 1.5, 3, x and 8. All these 4 terms are in proportion. तो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो. 4 terms are in proportion. Then product of, if 4 terms are in proportion, then product of extremes is equal to product of means. और आप इस तरह का एरो भी बनाते रहे हो क्लास 8 में. तो 1.5 3 into x, 3x equals to 1.5 into 8. तुरंत निकाल लीजिए. x इक्वल्स टू 1.5 इंटू 8 अपॉन 3. मल्टीप्लाई करिए. ये 12.0 आएगा, ये 3 आएगा. 3 4 या 12. सो वैल्यू ऑफ x इज 4. विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 12 नाउ. पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1. 2x square minus 7x minus 1 is divided by x plus 3. Then the remainder is इसमें आपका रिमाइंडर थ्योरम लगेगा. तो आपको करना क्या है? x की वैल्यू या इसको इक्वेशन मानना है रफ पे. तो x की वैल्यू आ गई -3. अब इसमें रखना है तो 2 into, अब आप सबको पता है कि -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. 7 into -3 -1. सो 18 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस 21 -1 39 -1 38. ऑप्शन बी 38. Next 13 we have
73 is the nth term of the AP. We have AP 3, 8, 13, 18। अभी मैंने कहा था कि AP वो सीरीज होता है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है। सो 8 माइनस 3 5 है, 13 माइनस 8 5 है, 18 माइनस 13 5 है, तो ये AP है। क्या पूछा है? कहा है कि 73 इसका nth टर्म है, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है AP के? AP के nth टर्म का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि 73 बोला है। एक फर्स्ट टर्म को बोलते हैं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 5, ये 3 ले जाके माइनस कर दीजिए। सो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 70। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 70 को 5 से डिवाइड करिए 14, n इक्वल्स टू 14 प्लस 1 15, मतलब 15th term. Do we have 15? n equals to 15. So option is C. So option C is the correct option. Now next one. The roots of the quadratic equation x square plus 2x plus 1 equals to 0 are. आप सबको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट d पे, और d की वैल्यू कुछ लोग गलत समझते हैं और लिखते हैं b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर नहीं, d डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप a b c को ऑब्जर्व करिए और लिख दीजिए सीधे 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 1, 4 माइनस 4 0। तो जब d की वैल्यू 0 आती है तो हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल। कौन सा ऑप्शन है रियल एंड इक्वल? रियल एंड इक्वल, ऑप्शन बी 14 का हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा है इज नॉट ट्रू। आपकी आदत होती है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहां पे आप थोड़ा गलत पढ़ लेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको लगेगा कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो 2-3 स्टेटमेंट इसमें ट्रू दिया है, तो आप किसी पे भी ट्रिक लगा देंगे। नहीं, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 सही होंगे, 1 सही नहीं है। जो सही नहीं है वही आंसर है। जो ऑप्शन सही, जो स्टेटमेंट सही नहीं है वही ऑप्शन आपके लिए आंसर है। फिर से बोल रहा हूं, जब पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो जो चारों में से 3 स्टेटमेंट ट्रू होंगे। आपको पढ़ना है स्टेटमेंट्स को, तो जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वही करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या है पहला स्टेटमेंट? ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स। हम सभी जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये ट्रू है। ऑल नल मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो फॉल्स है, इट इज नॉट ट्रू। स्क्वायर मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है। सो नल मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज 0, इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। जबकि यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। और नल मैट्रिक्स में, जीरो मैट्रिक्स में ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल
स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, रो कॉलम मैट्रिक्स हो, कैसा भी मैट्रिक्स हो, बस उसके एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो इट इज नॉट ट्रू, नल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू। तो ये हमारा आंसर होगा बी, ऑल नल मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है और हमारे लिए ये सही आंसर है। क्वेश्चन 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। x minus 2 is the factor of x cube x minus 2 is a factor of x cube plus 2x square minus 13x plus k. I hope you all know that if x minus 2 is the factor of this polynomial, then the remainder is 0. I mean, when we get the value of x from this and put in this expression, the remainder will be 0. जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा ही होगा। तो आपको करना क्या है, तुरंत x की वैल्यू 2 इसमें रख देनी है। 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 प्लस k इक्वल्स टू 0 लिखना है क्योंकि फैक्टर बोला है। तो 8 प्लस 8 माइनस 26 प्लस k इक्वल्स टू 0। 8 8 16 आया, तो 16 माइनस 26 प्लस k इक्वल्स टू 0, माइनस 10 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। k की वैल्यू क्या आई, 10 आई। डू वी हैव एनी ऑप्शन? यस, 16, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन 16 हैज इट्स करेक्ट ऑप्शन डी। सो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस सेक्शन ए के समझा दिए। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन बी पे, जो कि जिसके क्वेश्चंस इसके सेक्शन ए के क्वेश्चन से लेंदी होंगे, लॉन्गर होंगे और 2-2 नंबर के होंगे। और कितने क्वेश्चंस होंगे, केवल 6 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और इसको करने के लिए हमारे पास समय कितना है, 1.5 आवर। रिमेंबर, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है, अदरवाइज आई कैन फिनिश इट विद इन 30 मिनट्स। सो लेट अस डू, फिर से बता रहा हूं, कितने नंबर का पेपर है, 40 मार्क्स का। कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन। कितने क्वेश्चन सेक्शन ए में, 16 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सेक्शन बी में, 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सेक्शन सी में, केवल 3 क्वेश्चन। सेक्शन ए 16 नंबर का, सेक्शन बी 12 मार्क्स, सेक्शन सी 12 मार्क्स। So 16, 12, 12, altogether 40 marks paper, and you have to do it within 1.5 hour. It's written here, time allowed 1.5 hours inclusive of reading time. You will not be given the reading time. As earlier you used to have the reading time 15 minutes extra for reading. In case of online exam, multiple choice question, you will not be provided 15 minutes for reading and thinking. Remember it. So section B, marks, 6 questions. 17, we have a person who deposits 1200 rupees per month for 1 year. 1 year is a time of 12 months. Rate 5% per month. The interest earned by him, interest we have to calculate. केवल इंटरेस्ट
तो केवल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, क्यों मैच्योरिटी वैल्यू का लगाएंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 बाई 2400 इंटू R 1200 इंटू n 12 इंटू 13 इंटू 5 अपॉन 2400 12 2 या 24 6 या 5 6 या 30 5 6 या 30 30 इंटू 30 390. Do we have any option 390? Yes, B. Question number 18. X square minus 4 is a factor of polynomial. आप सबको पता है कि x स्क्वायर माइनस 4 के दो फैक्टर हैं, x प्लस 2 x माइनस 2। तो ये फैक्टर है किसका, उस पॉलिनोमियल को पहले लिख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, इसका ये यानी ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो पूछा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इस बार मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आंसर से क्वेश्चन को चेक करने का तरीका बताऊंगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1, x माइनस 2 x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 1। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है कि ये इसके फैक्टर है, अब इसका फैक्टराइजेशन करने पे 2 आया, तो आंसर में ये दोनों फैक्टर तो होने ही चाहिए, आंसर में ये दोनों फैक्टर तो होने ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि x माइनस 2 x माइनस 2 दिया है, x माइनस 2 x माइनस 2 दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आंसर होंगे ही नहीं, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म में ये दोनों आंसर तो होंगे ही नहीं। अब हमारे पास रह गया इन दोनों में से कौन आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों ही फैक्टराइज्ड फॉर्म में x प्लस 2 और x माइनस 2 देख सकते हो आप, है ना। अब रह गया तीसरा फैक्टर ये अथवा ये, तो आप इसी को रख के चेक कर लीजिए कि ये इसका फैक्टर है कि ये इसका फैक्टर है। ये दोनों तो इसके फैक्टर हो गए, इन दोनों में से इसमें रख के चेक कर लीजिए कि कौन फैक्टर है। अब अगर आप x इक्वल्स टू 1 रखते हो, इसमें x इक्वल्स टू 1 रखिए तो आएगा 1 क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1, फिर माइनस 4, ये तो 0 नहीं आ रहा, माइनस 8 प्लस 2 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब कि x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा, तो कौन होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 होगा। x इज इक्वल टू 1 रखने पे 0 नहीं आया, इसका मतलब कि x माइनस 1 ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब x प्लस 1 है तो x इज इक्वल टू माइनस 1 रख के चेक करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से ये फैक्टर होगा ही नहीं, तो यही ना होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए, x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 1। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने इसको रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से पूरा फैक्टराइज करके समय बर्बाद नहीं किया। क्वेश्चन 19, we have article A of 300 MRP, article B of 1200 MRP, GST on first is 12%, GST on second is 5%। ठीक, क्या पूछा है, द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल। दो सामान है ए और बी, उनके प्राइसेस हैं 300 1200, अब उनके लिए टैक्सेस भी दिया है, तो आप तुरंत आप इसमें कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 12% इसका निकालिए, और आप सभी क्लास 10th में हो,
300 का 12% आप तुरंत बता सकते हो, 36 रुपीज़। 1200 का 5% आप सभी बता सकते हो, 12 5 या 60 रुपीज़। ठीक, तो ये टैक्स हो गया, ये टैक्स हो गया, ये प्राइस है, ये प्राइस है, तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? टोटल प्राइस टू बी पेड फॉर दीज आर्टिकल्स A and B with tax will be 1200 plus 300, 1500, 60 plus 36, 96. So total will be 1596. Do we have any option? Option B. Now question number 20. The solution set, we have an inequation, -8 is less than or equal to x minus 7 is less than -4. Remember x है क्या, इस पे ध्यान देना है, x belongs to I. I means set of integers where you will be having natural numbers, negative of natural numbers and 0. आई होप यू ऑल नो सेट ऑफ इंटीजर्स। जब आप नंबर लाइन खींचते हो तो पहले उस पर इंटीजर्स ही मार्क करते हो, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 4, ये जो आप मार्क करते हो नंबर लाइन पे, ये सब इंटीजर्स ही होते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, सोल्यूशन सेट फॉर द लीनियर इक्वेशन इतना इज, तो आपको पता है कि इसको दो हिस्से में तोड़ना है और दोनों हिस्सों को सॉल्व करके एक फाइनल आंसर लाना है जिसमें कि केवल इंटीजर्स होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। -8, अब इसको इधर लिख लीजिए, -8 लेस देन आर इक्वल टू x minus 7, x minus 7 लेस देन -4। ठीक, इधर भेजिए, -8 plus 7, इधर भेजिए -4 plus 7। यहाँ आपको क्या मिला, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, यहाँ आपको क्या मिला, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। दोनों से रेंज क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 3। सो -1 या उससे बड़ा, -1 0 1 2, -1 से बड़ा 0, फिर 1, फिर 2 3 4 एंड सो ऑन, बट द अपर बाउंड्री इज 3, लेस देन 3 लिखा है तो 2 पर ही रुक जाएगा। तो हमारे पास इंटीजर्स का सेट है क्या ऐसा, -1 0 1 2, -1 0 1 2, ऑप्शन डी। So option D is the correct option. Now question number 1 2 3 I have done 17 18 19 20. Now I am going to do 21. We have a proportion five a plus 7b, sorry 5a upon 7b equals to 4c upon 3d। ये एक प्रोपोर्शन है और क्या बोला है कि देन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो पहले आप इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के लिख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन पे जाइए कि कौन सा सही ऑप्शन है। पहले इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए। क्या कहता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, 5a plus 7b upon 5a minus 7b, 4c plus 3d upon 4c minus 3d। अब ऑप्शन आप इसमें से सेट करिए कि क्या ऐसा कोई लिखा है। पहला ऑप्शन 5a plus 7b upon 5a minus 7b, 4c minus, पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पहला ऑप्शन में लिखा है क्या, 5a plus 7b upon 5a minus 7b equals to 4c minus 3d upon 4c plus 3d। ये ऑप्शन इससे टैली कर नहीं रहा है। इसी तरीके से सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो सही ऑप्शन है वो है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, इसमें मिसप्रिंटिंग है स्पेसिमेन पेपर में। क्या है वो मिसप्रिंटिंग, ऑप्शन सी। कैसे दिया है मैं बता रहा हूं, 5a plus 7b
अपॉन 5a माइनस 7b इक्वल्स टू, अब जो यहां लिखना चाहिए वो इधर आ गया है, वो क्या है 4c प्लस 3d अपॉन 4c माइनस 3d। हम लोगों के पेपर में ये अपॉन में इधर आ गया है, मिस प्रिंटिंग है, दैट इज नॉट रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डू वी हैव? We have a matrix A 2 minus 1 0 7 और हमको A स्क्वायर चाहिए। आपको पता होना चाहिए A स्क्वायर मीन्स A इंटू A, सो 2 0 माइनस 1 7। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू माइनस 1 0, फिर 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 7 0 इंटू 7 0 होता है तो प्लस 0, फिर ये रो पे आइए और इससे मल्टीप्लाई करिए। माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, फिर 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, फिर माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 7 इंटू 7 49, मतलब आंसर आएगा 4 माइनस 9 0 49। डू वी हैव एनी ऑप्शन? 4 minus 9 0 49, that is option number B. So we have got the answers of section A and section B. Now the last is section C. Let's do. It will be having 3 questions only, but each question will be of 4 marks. Means for 4 marks, 4 parts of the question you have to solve. Each part will carry 1 mark. I mean, you don't think that since you make mistake in one question of section B, so you will lose 4 marks. No, my dear students. सेक्शन बी खतरनाक है, क्योंकि सेक्शन बी का प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर गलती हुआ तो सीधे 2 नंबर गया, और जबकि सेक्शन सी का एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो है, लेकिन 4 पार्ट हैं, हर एक पार्ट 1 नंबर का है। यानी अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तब आपके 4 नंबर जाएंगे, अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है तो किसी एक पार्ट में अगर मिस्टेक हुआ तो 1 नंबर कटेगा, न कि 2 नंबर या 4 नंबर। तो क्वेश्चन इज 23। चलिए, डायग्राम बेस्ड है? नहीं, डायग्राम नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि ये अब लेंदी क्वेश्चन है। आपको बहुत ही ध्यान से सेक्शन बी के क्वेश्चन को बहुत ही, क्योंकि वो वर्ड्स बेस्ड होगा, शब्दों पे आधारित है। आपको क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को समझना होगा। कहीं भी अगर इंफॉर्मेशन को समझने में मिस्टेक हुआ तो उस मिस्टेक के कारण आपके सारे ऑप्शंस के आंसर गलत हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई गो थ्रू द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी केयरफुली, जैसे मैं जा रहा हूं। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी बाय रोड इज 240। ए और बी बाय रोड जाने पे 240 किलोमीटर है, और ए और बी, वही ए और बी बाय ट्रेन जाने पे 300 किलोमीटर है। ठीक, आगे क्या बोला है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी। सो डेफिनेटली कार रोड से जाएगी और ट्रेन रेलवे ट्रैक से जाएगी। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी विथ x किलोमीटर पर आवर। सो इसके लिए कार है, और कार की स्पीड क्या है?
x किलोमीटर पर आवर, और जबकि इस रास्ते के लिए 300 किलोमीटर लंबे रास्ते के लिए ट्रेन है। और ट्रेन के बारे में क्या बोला है, ट्रेन की स्पीड इस कार की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो ट्रेन की स्पीड x + 20 हो गई ना, x + 20, कार की स्पीड x तो ट्रेन की स्पीड 20 ज़्यादा हो गई। अब एक एक पार्ट का आंसर देना है हमको। पूछा है द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द स्टेशन B। फर्स्ट पार्ट, टाइम फॉर कार, सबको पता है टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, 240/x। कोई ऑप्शन है हमारे पास? ए। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सेकेंड वन, व्हाट डू वी हैव? द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द स्टेशन ए। ठीक, अब बी स्टेशन से ए स्टेशन ट्रेन आ रही है तो उसका टाइम पूछा है, तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 300/x + 20। डू वी हैव? डू वी हैव दिस ऑप्शन? कहाँ है? 300/x + 20, ऑप्शन डी। तीसरे पे आइए, तीसरे पे क्या पूछा है? इफ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज 1 आवर लेस देन टाइम टेकन बाय द कार। ये ट्रेन का टाइम इस कार के टाइम से 1 घंटा कम है, यानी ये ज़्यादा है इससे। अब आप इक्वेशन बनाइए, 240/x माइनस 300/x + 20 = 1। ये टाइम इस टाइम से 1 घंटे ज़्यादा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा ये पूछा है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आप इसको खट से सॉल्व करिए। क्या करेंगे आप? पहले तो 2400 और 300 है, अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। x + 20 × x, एलसीएम हो गया, फिर इसका इसमें गुणा। हालांकि मैं करूँगा तो क्या करूँगा, 300 कॉमन ले लूँगा। 300 आप न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 8/x माइनस 1/x + 20 = 1। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 8x + 160 माइनस x/x इंटू x + 20 = 1। अब ये 8x में से x गया 7x, 300 का मल्टीप्लाई करिए, सो 2100x प्लस 6 3 × 48, 48,000 = x² + 20। ये इधर ले गया। फिर क्या करेंगे आप, सबको इधर बुलाइए। सो x², ये 20x है, वेट, this is 240 only, I made mistake, this is 240 only, so no need to take common, take LCM, x into x + 20, 240x plus 240 multiplied by 20, 24 multiplied by 2, 48, 4800 माइनस 300x = 1। फिर क्या करेंगे आप, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस 60x प्लस 4800, और ये इधर ले जाइए, आपको मिल जाएगा x² + 20x। फिर सबको उधर ले जाइए, सो x² प्लस 80x माइनस 4800 = 0। कोई ऑप्शन है ऐसा, x² प्लस 80x माइनस 4800? यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करना है, स्पीड ऑफ द कार। सॉल्व कर लीजिए इसको, इसके 2 फैक्टर खोज लीजिए।
हालांकि आप चाहें तो आंसर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं है। आंसर से भी चेक करने का सिखाऊंगा आपको। स्पीड ऑफ द कार, इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 नंबर सोचना है, 120x माइनस 40x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 120 माइनस 40 कॉमन आ गया, x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर आए, x माइनस 40 और x प्लस 120। x की वैल्यू कितनी आई? 40 आई। और यही 40 तो कार की स्पीड थी। क्या पूछा है? स्पीड ऑफ द कार 40, ऑप्शन सी। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं आंसर को चेक करने का। अगर आप लास्ट आंसर को चाहते थे जल्दी से लाना बिना इसको सॉल्व किए, तो आपने ये लिखा था ना, x 200, आपने लिखा था 240 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल टू 1 लिखा था ना आपने। x कार की स्पीड थी। अब आपके पास कार की स्पीड का ऑप्शन क्या क्या दिया है? 60, 120, 40 और 80। कार के स्पीड के लिए इतने सारे ऑप्शन दिया है। अगर आप 60, देखिए 60 लेके चलते हैं तो ये इसको काट दिया, 4 आया। यहां 60 को 20 में जोड़ोगे तो 80 आएगा, 80 300 को काटेगा तो फ्रैक्शन में आएगा और आंसर 1 नहीं आएगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। कार का स्पीड 120 पे आइए, 120 रखेंगे तो इसको काट के 2 आवर आ जाएगा। 120 इसको भी काटेगा तो डेसिमल में आएगा, तो भी ये घटाने के बाद आंसर 1 नहीं आएगा। ये भी नहीं हो सकता। अब 40 से आंसर चेक करिए, कार की स्पीड 40 लेकर के चेक करिए। 40 को यहाँ रखेंगे तो 6 घंटा आएगा, 40 को यहाँ रखेंगे तो 60 और इसको काट दिया 5 घंटा आएगा। 40 प्लस 20 60, 60 इसको काट दिया 5 घंटा, तो 6 घंटा में से 5 घंटा 1 घंटा आएगा। तो आंसर तो ये होगा कार की स्पीड। तो ये प्रोसेस लगा के सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं थी। आप जब तीन पार्ट्स के आंसर दे दिए, तो चौथे पार्ट जिसमें कार की स्पीड पूछा था वो आप उस इक्वेशन से भी निकाल सकते थे डायरेक्टली, शॉर्टकट मेथड जो मैंने बताया है। इसकी तुलना में ये आसान है। चलिए अगला चलते हैं। तो इस फोर्थ पार्ट का ऑप्शन था 40 किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब आ गए हम लोग लास्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24 को सॉल्व किया जाए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। सिमिलरिटी को लेकर के मैं कुछ बातें बताऊंगा। 2-3 चीजें मैं बता चुका हूं कि मैंने कहा था कि जब 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक्स जैसा बने तो उन पैरेलल लाइंस के हेल्प से जो 2 ट्रायंगल्स बनेंगे। क्या कहा मैंने? तो इन पैरेलल लाइंस के हेल्प से जो 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, ये और ये लेकर के जो 2 ट्रायंगल बनेंगे वो सिमिलर होते हैं। अब मैं दूसरा क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि जब एक ट्रायंगल के भीतर पैरेलल लाइन खींच देते हैं तो उस ट्रायंगल का 2 हिस्सा हो जाता है। एक हिस्सा जो कि ट्रायंगल होता है और दूसरा हिस्सा ट्रेपेजियम होता है। तो जो ट्रायंगल है छोटा वाला वो बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है। क्या कहा मैंने? इन ए ट्रायंगल व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, then it divides the triangle into 2 parts. One part is the triangle and another is trapezium. So the part which is triangle is similar to the original triangle. So this smaller triangle is similar to the original triangle. Remember it. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नहीं है, 2 पेयर्स हैं। ध्यान से देख लीजिए। एक कौन है, कहाँ गया? ये देखिए, ये पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो ये ट्रायंगल और बड़ा वाला सिमिलर हो गए, तो इसके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। परिणाम लिखिए, P A B Q R। और इधर भी एक पैरेलल है, किसके?
इसके। और देखिए वही नहीं, ये x जैसा भी बना है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, यहाँ पे लिखा है O। अब यहाँ पे 6C, यहाँ पे 4C, यहाँ पे 3C, ये सब लेंथ दिया है। BR की लेंथ है, ये CR की लेंथ है, ये QC की लेंथ है। ठीक, QC की लेंथ 6C 4C। अब सेंटीमीटर लेके चलिए इसको। ठीक है, पहला पार्ट में पूछा है ट्रायंगल ARQ किसके सिमिलर है। ARQ को पहले देखिए तो कहाँ गया, ARQ, the triangle similar to ARQ। ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। ORC, ये छोटा सा, ये ORC, जैसे ही मैं ऑप्शन पे गया मेरे दिमाग ने कहा ओ ये ट्रायंगल के अंदर तो ये पैरेलल लाइन आ रही है। तो अभी मैंने कहा कि एक ट्रायंगल के अंदर जैसे ही पैरेलल लाइन आएगी दोनों ट्रायंगल छोटा वाला बड़ा वाला सिमिलर हो जाएंगे। तो कौन सा इसके सिमिलर होगा, ORC। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया, ORC, ये है ऑप्शन ए। फिर सेकंड पार्ट क्या है, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCR। PQR इज सिमिलर टू BCR, ये इसमें बोल दिया है, इसमें सिमिलर बोला है। ठीक है, PQR इज सिमिलर टू BCR, किस एक्सियम से, ये PQR है, BCR कहाँ है, ये है, फिर से बनाइए PQR BCR, आप देखिए ये इसके पैरेलल है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल किस एक्सियम से सिमिलर है, पैरेलल लाइंस। जैसे ही दो पैरेलल लाइंस के हेल्प से ट्रायंगल बनेगा, दो पैरेलल लाइंस के हेल्प से ट्रायंगल, चाहे ये वाला बने चाहे ये वाला बने, वो ट्रायंगल्स एंगल से ही सिमिलर होंगे, साइड्स को जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे एंगल से, क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर करस्पॉन्डिंग। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा भाई, एंगल। अब एंगल में ट्रिपल एंगल बोल दीजिएगा आप, ट्रिपल एंगल कौन सा है वो, बी। अब तीसरे पे आइए, तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, तीसरा है QC6। तो डायग्राम में लिखा है, क्या पूछा है, PR, कहाँ गया PR, खोजिए PR कहाँ है। PR बड़े ट्रायंगल का साइड है, तो आप बड़े ट्रायंगल को ड्रा करिए अलग से, आंसर देना है तो PR। ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर था ना, इस छोटे वाले के। तो अब आपका कैसे प्रपोर्शन बनेगा, ये साइड अपॉन बड़ा वाला साइड, ये कितना है 3C अपॉन PR, ये कितना है 4C अपॉन QR 10C, ये QR 10 हो गया। 4C अपॉन 10C इज इक्वल टू 3C अपॉन पूरा PR। अब आपको चाहिए क्या, बोले तो ये C कैंसिल कर लीजिए, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4R इज इक्वल टू 4PR इज इक्वल टू 30C। So PR is equal to 30 upon 4, 7.5. So do we have 7.5 C? Actually C stands for centimeter. थोड़ा मिसप्रिंट है, तो आंसर 7.5 है ना C।
ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब इसको चेक करने का तो बहुत से तरीके हैं कि कौन सा आंसर आएगा। मैं आपको इसका एक दूसरा मेथड भी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरे सॉल्यूशन को समझाने में मुझे समय लगता है। कितना दिया है? ये 4 दिया है। ये कितना दिया है? 6 दिया है। ध्यान से सुनिए, ये 4 ये 6, छोटे ट्रायंगल का पार्ट इसके करस्पॉन्डिंग है, तो 4 से 6 यानी 1.5 गुना। यू आर इन क्लास 10, आई होप यू अंडरस्टैंड। 6 इज 1.5 टाइम्स ऑफ 4, इट मीन्स इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल के साइड्स में 1.5 गुना का अंतर है। तो जब ये 3 है तो इसका 1.5 गुना क्या होगा? थोड़ा सा मैं वो बोल दिया। ये 4 है, ये 6 है ना? ये 4 है और ये 6 है, तो 4 है और ये पूरा 10 हो गया, तो 1.5 गुना नहीं 2.5 गुना हुआ। 4 से 10 कितना गुना हुआ? 2.5। इट मीन्स दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स एक दूसरे के छोटा वाला बड़ा वाला छोटे का 2.5 गुना हुआ, बड़ा वाला छोटे का 2.5 गुना हुआ। तो अगर ये 3C है तो ये उसका 2.5 गुना हुआ। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आएगा? 7.5 ही ना आएगा। वो भी एक तरीका था, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उससे करिएगा। किससे? इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन प्रपोर्शन। चलिए नेक्स्ट वन, लास्ट पार्ट। The ratio PQ to BC, PQ to BC, ये है PQ, ये है BC। तो हम लोग तो जानते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो जो उनके साइड्स का रेशियो होगा, उनके साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। तो ये किसका पूछा है? PQ का BC से, तो बड़े वाले का छोटे से पूछा है। इस PQ का BC से पूछा है, तो बड़ा वाला QR 10, छोटा वाला 4। अभी मैंने 2.5 बताया था, तो क्या आएगा? 2.5 रेशियो 1। अब उसको 5/2 कर देंगे। डू वी हैव 5/2? यस वी हैव 5/2, 5:2। So which option is correct? C. Now the last question I am going to tell you, question number 25. तो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन अब मैं बताने जा रहा हूं। चलिए उसको करते हैं। तो सिमिलरिटी के लिए मैंने आपको क्या क्या बातें बताई एक बार फिर से दिखा देता हूं। सिमिलरिटी जो लोग अभी हल्का फुल्का जानते हैं, 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, जैसा कि मैंने बताया ये और ये, तो उनके साइड्स का रेशियो बराबर होगा और उनके एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है? आफ्टर सिमिलरिटी वी से दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, एंड वी से दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन proportion, are proportional। तो इसका रेशियो इससे उतना ही होगा जितना कि इसका इससे, जितना कि इसका इससे। आई मीन ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, इन केस ऑफ सिमिलैरिटी। लेट्स गो टू क्वेश्चन 25, लास्ट क्वेश्चन। वी हैव 4 पार्ट्स। द nth term of AP given that Tn equals to 3n plus 1। याद रखिएगा n क्या है? n शो करता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है? तो क्या पूछा है? फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स को मैंने आप सभी लोगों को क्लास में बताया है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सिंबल होता है T1, T2, T3, और फार्मूला जो होता है वो बात की बात है। वी आर आस्क्ड T1, T2, T3, करेक्ट? मेरे शॉर्टकट को समझिएगा, T1, T2, T3। सो T1 यानी n की वैल्यू 1 रख दीजिए इसमें, 3 × 1 + 1 4,
T2, 3 into 2 plus 1, 7. T3, 3 into 3 plus 1, 10. So the first three terms of this one will be 4, 7, 10. Correct? Which option? D. Second one. What is the second? Second is the common difference of the AP. 7 minus 4, 3. Which option? A. Which of the following is not a term of this AP? Which of the following is not a term of this AP? अभी हम लोगों ने कहा कि AP ये चल रहा है तो डिफरेंस कितना है? 3 है, ठीक? तो इसमें टर्म कौन सा टर्म क्या दिया है? 25, फिर क्या दिया है? 27, फिर 28, फिर 31, ठीक है? अब आपको करना क्या है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ट्रायल मेथड पे चलिए मेरे। Tn दिया है 3n plus 1, है ना? फार्मूला दिया है nth टर्म के लिए 3n plus 1 और इतने सारे ऑप्शन दिया है कि कहा है कि कौन इसके AP के सीरीज में नहीं आएगा, AP के टर्म्स में नहीं आएगा, यही ना? चेक करिए। अगर आप n को कैसे वैल्यूज आ रही है, n को 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो ना? तो ये 25 पे आई है, चेक करते जाइए। एक तरीका तो ये है कि इसी से चेक करते जाइए, रखना नहीं है इसको। यहाँ पे 25, 27, 28, फिर उसके बाद क्या दिया था? 31, यही ना? तो आपके पास कई सारे तरीके हैं, आप सीरीज को खट 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 पूरा लिखते जाइए। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा था? हम लोगों ने 4, 7, 10 लिखा था ना। एक तो तरीका ये है 4, 7, 10, फिर 13, फिर 16, फिर 19, फिर 22, फिर 25, फिर 28, फिर 31। 25 भी दिया है, 28 भी दिया है, 31 भी दिया है, 27 नहीं हो सकता। एक तो ये भी तरीका है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। जब आपने 3 टर्म्स लिख लिए तो बाकी की खट 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 लिखते जाइए। 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31। 27 नहीं है तो ये 27 नहीं है, तो ये भी तरीका है। चलिए इसी शॉर्टकट को लगा दीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन AP? तो आप क्या कहोगे? 27 कौन सा? B। दूसरा तरीका मैंने क्या कहा था? आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करिए। n को 10 देंगे तो 31 लाने के लिए n को 10 दीजिए तो 30 + 1 31 आ जाएगा। 28, n को 9 दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 28 आ जाएगा। लेकिन 27 कैसे आएगा? n को कितना वैल्यू दे कि 20 जोड़ने पे 127 आ जाए? ऐसा संभव ही नहीं है। 25 के लिए 3 8 या 24 + 1 करने पे 25 आ जाएगा। लेकिन n को कोई काउंटिंग वैल्यू देने के बाद 1 जोड़ने के बाद 27 तो नहीं आएगा, इसलिए 27 आंसर नहीं हो सकता। अब लास्ट, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP इज। अब उसके लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या आप सभी को लिखिए, ये तो बहुत लेंदी है। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। तो 10/2 2 × a था 4 प्लस n - 1 10 - 1 9 और d क्या था? 3। तो ये हो गया 5, 2 4 जा 8, 9 3 जा 27। सो 5 × 35, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 17, 175. Do we have option B? So I have solved all the questions, my dear students. I took time because I was explaining you. I will be preparing more specimen question papers for you. Wait for the new video to come. I hope you will like the videos and share and subscribe my channel. So meet you in the next video with some new information, new solution. Bye bye.